Hello friends, welcome to my channel Knowledge with Renu. So today we will study the topic communication, and actually this topic is very important because it comes in many subjects like nursing education, nursing foundation, psychiatry, and you will get in research also. And it is a part and parcel whenever we are caring for the patient or whenever we are communicating with our near and dear. So communication is very important topic. So let's see what is communication. First of all, we will see the meaning of communication. Communication का meaning क्या है? Actually, this communication word is derived from common or shared by all. This is from Greek. This is from Latin word. This is from Latin word. And so communication means the act of making something common or shared. Now we will see the definition of communication. So it is again, the definition of communication is, it is a process of changing or exchanging the information from one person to another. It is a process of sharing information, thoughts and feelings between people. Now next is elements of communication. So we know elements or the components are like sender, message, receiver, then channel, then feedback. तो sender कौन है? Sender is a person who is sending the information to the receiver, right? What is message? Message is a information. It can be in the form of spoken words or the written words. So it is the message. Message is the content, main content which is being sent from sender to receiver. Then who is receiver? Receiver is a person who is receiving the information which has been sent by the sender. Now whether the message has been received to receiver or not, this we will check through feedback. So feedback is a process by which the receiver is telling that yes, I have received the message. जब तक हमें feedback में पता ही नहीं चलेगा कि हमारे मैसेज का क्या हुआ, तो we in this technical era we all are aware about like WhatsApp मैसेजेस कई बार हम व्हाट्सएप में ग्रुप्स में डालते हैं तो रिस्पांस देखने के लिए बहुत बार बार देखते हैं कि मैसेज कैसा आ रहा है, रिस्पांस कैसे आ रहा है. तो वो जो मैसेज आता है, जो रिस्पांस आता है, उसको ही हम फीडबैक कह सकते हैं. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इन द कंपोनेंट इज़ चैनल ऑल्सो. चैनल क्या है? चैनल तो वो एक माध्यम है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. तो इट कैन बी थ्रू ईमेल, इट कैन बी थ्रू व्हाट्सएप, इट कैन बी थ्रू लेटर्स, कार्ड्स and Telegram, Facebook. So many media is there by which we can send the message. So channel is also very important. So this is all about the elements or the components of communication. Next we will see the types of communication. आपने types पढ़ा होगा, बहुत शॉर्ट में पढ़ा होगा, या आप हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे कि वर्बल है कि नॉन वर्बल है कि रिटन है कि ओरल है. तो हियर आई हैव ब्रॉट for you this information in a very you can say attractive way. So the types of communication, it can be first on the basis of direction, then on the basis of relationship, then on the basis of communication channel, and also on the basis of organizational structure, right? मैंने 4 टाइप के कम्युनिकेशंस आपको बताए. तो लेट्स सी ऑन कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. सो डायरेक्शन के हिसाब से आप जानते हैं, जब हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ऑफिसेस में काम करते हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लागू होता है ना. तो वन इज़ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अदर वन इज़ वर्टिकल कम्युनिकेशन,
देन अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और द डायगोनल कम्युनिकेशन। इतने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, नाम से ही पता लग रहा, हॉरिजॉन्टल मतलब सेम एक्सिस के लोग, सेम पोस्ट के लोग, सेम एज मेट के लोग, ये सब हॉरिजॉन्टल में आ सकते हैं। वर्टिकल में क्या है, जब हमारा हायर अथॉरिटी बात करता है या जब हम अपने हायर अथॉरिटी से बात करते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है ये डायरेक्शन के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, देन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप क्या हो सकता है, वन इज़ इंट्रापर्सनल, सेकेंड इज़ इंटरपर्सनल, थर्ड इज़ ग्रुप कम्युनिकेशन, फोर्थ इज़ मास कम्युनिकेशन and fifth is transpersonal communication, right? So intrapersonal communication क्या है, as the spelling itself is telling, intra, intra, personal, so means when we are talking with ourselves, जब हम खुद बात करते हैं अपने में, वो क्या होता है, इंट्रापर्सनल होता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, इट इज़ सेल्फ मोटिवेटिंग। आप बोलते हैं ना कि हम आज से अच्छे से पढ़ेंगे, इतने घंटे हम डिवोट करेंगे, हमको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, सो दैट इज़ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, या मेरी ड्यूटी तो ऑफ हो गई है बट आई शुड स्टे बिकॉज पेशेंट्स मेडिकेशन इज़ नॉट येट ओवर, तो हमको रुकना पड़ेगा, हमको टाइम देना पड़ेगा। ये सारी बातें हम क्या करते हैं, खुद से बात करते हैं, तो ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। नाउ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, दो या दो के बीच में जब बात होती है तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, व्हेन वी आर टॉकिंग इन अ ग्रुप मोर देन 2 people, सो दैट इज़ ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या है, पब्लिक में जब कोई इन्फॉर्मेशन हम भेजते हैं तो मास कम्युनिकेशन, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोगों को कवर करते हैं तो वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन भी कुछ होता है, वो क्या है, ट्रांसपर्सनल मीन्स स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन या मेडिटेशन एंड ऑल, it will come under transpersonal communication, right? Now based on communication channel, there are 2 types, one is verbal, other is non-verbal communication। वर्बल कम्युनिकेशन में भी आप सोचते होंगे वर्बल मीन्स सिर्फ बोलना, तो वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल एंड रिटन दोनों आता है। ठीक है, जिसमें आपने शब्दों का यूज़ किया, spoken words are being used when we are verbalizing anything orally, or it can be in the form of written also. So verbal is oral and written both. Now non-verbal communication, you know, as verbal is important, in the same way non-verbal communication is also very very important, because sometimes, you know, like a small child, he can't communicate anything, but he will communicate many things with non-verbal, like if he is having pain in his stomach, he will touch his part again and again, so we will understand that this child is having problem in his stomach or headache, like that. So non-verbal communication is also of many types. One is proximus, paralanguage, haptics, chromatin, artifacts, kinetics, then oculo, olfactory. So these are the types of non-verbal communication. So you can read it in a detailed notes, whatever you have made. So like proximus means proximity, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यहाँ बोलना तो है नहीं, लेकिन प्रॉक्सिमिटी का बात क्या है कि स्पेस, कितनी दूर में हम बात कर रहे हैं, ये स्पेस लैंग्वेज बताती है। तो ये पता चलता है, जैसे आप अपनी मदर से बात कर रहे हैं, बिल्कुल बगल में बैठ जाते हैं, जाके भाई बहनों के बगल में बैठ जाते हैं, सो इस तरीके से ये स्पेस लैंग्वेज बताती है। और नेक्स्ट है आपका पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मीन्स क्या है कि बोलने का तरीका, योर टोन एंड पिच, हाउ यू आर स्पीकिंग, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना। कोई चीज़ धीरे से हम बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, कोई चीज़ वही हम बहुत ज़ोर से बोलते हैं और पिच हमारा ख़राब होता है,
तो इससे पता लगता है पर्सन गुस्से में है या शांत है ना। तो पैरा लैंग्वेज। हैप्टिक्स क्या है? टच लैंग्वेज, है ना। किसी को आप प्यार से छू रहे हैं, अच्छे से छू रहे हैं, या आपका इंटेंशन गलत है, तो ये हैप्टिक्स है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी आते हैं। देन आर्टिफैक्ट्स हैं। आर्टिफैक्ट्स यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स से हम पढ़ते हैं, है ना, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उससे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोब से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। स्केलेटन, एवियर्स की तरह ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। स्केलेटन, उसको देख के भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं, राइट। देन बहुत सारी चीज़ें कलर से भी पता लगता है हमको, तो वो क्रोमैटिक्स के अंदर आता है। देन काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मीन्स बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, तो ये नॉन वर्बल ये भी कन्वे करता है मैसेज। ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी में क्या है? स्मेल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। नाउ मैंने आपको ये भी बताया था कि बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी देयर आर 2 कैटेगरीज। सो वन इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन, अदर इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? एज द नेम इंडिकेट्स, फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या करना है? फॉर्मेलिटी मतलब इट इज़ स्ट्रक्चर्ड वन, वेल प्लान्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, कॉलेज है, स्कूल है, इनमें सब में ये फॉर्मल कम्युनिकेशन चलता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स आप कोई चीज़ बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं, आप वर्बली बोलते हैं, उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं। लेकिन अगर आप एक एप्लीकेशन लिख देते हैं तो वो चीज़ें आ जाती हैं फंक्शन में और आपको वो चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। इसलिए फॉर्मल जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ स्ट्रक्चर्ड वर्क एंड इट इज़ प्लान्ड वन, वेल प्लान्ड। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? ये अनस्ट्रक्चर्ड है। जैसे वो स्ट्रक्चर्ड था फॉर्मल, ये अनस्ट्रक्चर्ड है। तो इसमें आपका आ सकता है गॉसिप्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ना, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस ज़्यादा नहीं होते हैं, बैठ के लोग गॉसिप करते हैं, स्पॉन्टेनियस होता है, अचानक से, है ना। तो वैसे हम इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन जो मैंने शॉर्ट में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी वेरियस टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन।